Hello everyone, welcome to Rodha. My name is Tarun, and in this video we'll be talking about exam taking strategy for MHCET, right? So I've been in the industry for almost more than 20 years now and have taken multiple exams. I've taken CAT multiple times, almost 20 times now, and I've taken other exams like IFT, ZAT, and obviously MHCET, okay, and CMAT also, right? So there was a year when I took almost every exam of MBA, and but yeah, frequently I am taking the different exams, right, in the different years, right. हर बार हर सारे नहीं दे पाता हूँ, but yeah, I try to maximize it. But CAT तो definitely CAT and ZAT वो definitely बनता है. MSCT sometimes we can give, right. So that's the idea. So the idea is to tell you that what is the thing what is the thing that is important while strategizing your exams, right? How to take the exams. That's the important point. Why? Because what happens that you study, right? So your more focus is on study, definitely, which should be there. I agree, but on the same side you give less importance to the strategy which is required to take an exam. Strategy to take CAT is different from strategy to take ZAT, is different from strategy to take CMAT and MSCET, rather SNAP also, right? Because the nature of the test is completely different, right? I'm just giving an example. So whatever strategy you apply in exam A might be possible that it is not possible to apply in exam B, or if you apply you will eventually get in the problem, right? So that is the main idea, that what is the best strategy that should be applied in MHCET, right? From my experience, from students experience, so I'll talk about all those things, है ना. अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, बिकॉज इतने साल से एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली हम भी कुछ स्ट्रेटजी लगाते हैं, राइट. कभी वर्क करती है, कभी वर्क नहीं भी करती है, राइट. ठीक है. सो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, whether should I stick to one strategy or I should find my own strategy, ये भी एक पॉइंट आ जाता है ना. जनरली क्या होता है कि many teachers tell you, right, that this is the strategy, अप्लाई कर लेना और हो जाएगा तुम्हारा, but it might not work for you individually. Listen to this, right. So what I'm saying is that let me give you an example that this is the strategy that you should follow, but might be possible it is working for 90 out of 100 people, but might not be possible कि 10 लोगों के लिए काम ना कर रहा हो, 10% rather we are talking about, right. So अगर नहीं कर रहा है तो उस केस में you need to think that this is not working for me, तो आप कुछ चेंज करके लाओ उसके अंदर. That is why mocks are the most important thing, जिससे हम बचते हैं. ये प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं कि लास्ट में दे देंगे सारे. You cannot build your strategy in 1 week. Understand this point, right? Strategy को build करने में जो actually काम करे उसको टाइम लगता है, right? अभी टाइम आपके पास कम बचा है. If you have not started giving mocks, start taking these. Okay? Start taking mocks and analyze it. We'll talk about that also, that how to analyze mocks. But as of now, let's talk about what is the thing, right? So when we say overall, you know about this, right? 150 minutes, 200 questions. So how much time I have for question per question? So I roughly क्या मतलब exactly 75 seconds per question, right? So do I need to solve every question in 20 minutes? So sorry, 45 seconds. I have 45 seconds per question, right? क्या मुझे सारे क्वेश्चन 45 seconds में करने? No, right? It is an approximation average. तो और to get a very good score, right? क्या आप 200 क्वेश्चन कर पाओगे? Might not be possible. Obviously you will do the guesswork, that's a different thing. So काफी हद तक वो भी एक काम करता है कि guesswork से भी कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं. तो guess तो करना ही है, मतलब eventually you will attempt all questions, that's for sure. But genuine attempt कितने होंगे? So to get to JBIMS, right, let's say, तो 150 plus minus score आपको चाहिए, depending on slot to slot और year to year, है ना. जनरली यही रहता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं है, राइट. सो 150 क्वेश्चन विद अ गुड एक्यूरेसी, 150 मार्क्स लाने के लिए यू
attempt around 175 questions I should say, right? I mean कहीं ना कहीं 20-25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शायद छूट जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, या जिसमें आप गेस वर्क करोगे. ये भी पॉसिबल है कि आप 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो एंड विद गुड एक्यूरेसी आउट ऑफ दिस लेट्स से 130-140 इज करेक्ट, एंड वॉट एवर फ्लूक आप लगाओगे उसके अंदर भी आपके कुछ 10-15-20 ठीक हो जाए. वो तो फिर मतलब वो भगवान भरोसे, उसमें क्या कर सकते हो, राइट? उसमें तो मतलब उसमें कुछ स्ट्रेटजी नहीं लगा सकते. दैट्स द पॉइंट. बट आइडली मैक्सिमाइज हमको करना है जेन्युइन अटेम्प्ट्स, राइट? दैट्स द मेन थिंग. तो वो एक टारगेट हमारा होना चाहिए, है ना? सो 45 सेकंड्स पर क्वेश्चन है, बट यू माइट गेट क्वेश्चंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड इन 20 सेकंड्स आल्सो. लाइक you might get this, let me give an example. You might get this question also, right? Which is very easy. I mean, I should not take more than 20 seconds in this. मतलब शायद उससे भी कम होगा definitely. Once you are clear with the logic कि क्या है इसके अंदर. This is actual exam question last year. ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो 15 seconds का maximum to maximum है, right? So यहाँ पर मैं definitely मैं सेव करूंगा टाइम फॉर दोज क्वेश्चंस जो शायद मुझे ज्यादा टाइम देंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, राइट? इफ यू ट्राई टू अटेम्प्ट इट, इट विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? ये 1.5-2 मिनट्स तक ले लेगा. और इसमें एरर भी थी, ये भी एक प्रॉब्लम बात करेंगे इसके बारे में. एरर्स के बाद के लिए क्या करना है, क्योंकि वो भी स्ट्रेटेजी का पार्ट है फॉर MHCET. सो इवेंचुअली यू सी दैट, ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिए कि क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे विच कैन बी सॉल्व इन 10-20 सेकेंड्स, और ये ऐसे भी मिलेंगे विच कैन टेक मोर देन 1 मिनट, राइट? सो अब क्या चीज हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम आप बात करते हो स्पीड पे, स्पीड इंक्रीज करो, राइट? उसमें क्या होता है, एक्यूरेसी कम हो जाती है. इसको इंक्रीज करते हो, मतलब थोड़ा ध्यान से करते हो क्वेश्चन को, टाइम लगाया करते हो, तो स्पीड कम हो जाती है. प्रॉब्लम एक्चुअली यहां पर है नहीं, प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, बिकॉज यू विल गेट मोस्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. काफी ज्यादा क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही इजी होंगे. समटाइम्स यू विल गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, मतलब LR AR के अंदर आप बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल एनालिटिकल रीजनिंग, तो उसमें रफली यू विल गेट 50-55 क्वेश्चंस. रिमेनिंग लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगा, मतलब क्रिटिकल रीजनिंग आ जाएगा, राइट? कोर्स ऑफ एक्शन, सिलोजिज्म एंड ऑल. सो मे बी 60 ऑल्सो माइट बी पॉसिबल कि 60 मैक्सिमम इसके अंदर आ सकता है. तो 60 में से माइट बी पॉसिबल दैट 4 to 5 आर वेरी टफ, राइट? 4 to 5 आर मीडियम, like this, which can be solved but take time. Most of these will be easy, which can be solved in less than 1 minute. Okay, काफी सारे हो जाएंगे ऐसे, ठीक है? अब I'm talking about AR as of now, okay? Because you'll have directions, you'll have coding decoding slightly थोड़ा टाइम ले लेता है, और मतलब कई बार इजी हो जाएगा तो that's no problem, वो भी जल्दी हो जाता है. बट अदरवाइज समटाइम्स इट हैपेंस कि वो काफी अजीब सा देते. सो एक क्वेश्चन को लेफ्ट कब करना है, छोड़ना कब है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हाँ भाई इसके बाद मैं नहीं करने वाला हूँ, राइट? छोड़ने वाला क्वेश्चन है, वो भी बात करते हैं अभी. सो द पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है. वेदर शुड आई अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और नॉट. ये दो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ. ये क्वेश्चन डेफिनेटली अटेम्प्ट करने वाला है, देख के पता लग जाएगी, बहुत इजी है, वेरी इजी लॉजिक इज देयर. यू विल अटेम्प्ट इट 15-20 सेकंड्स के अंदर मैक्सिमम, एंड यू विल मूव ऑन. गॉट इट? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. ये देख के लग रहा है कि ये इजी नहीं होने वाला, तो इसको तो मैं अटेम्प्ट नहीं करने वाला. नाउ इट माइट बी पॉसिबल कि आप इसको देखो, हाँ ये ठीक है, आई कैन डू दिस क्वेश्चन, राइट? सेट थ्योरी बेस्ड है, नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, मैं कर लेता हूँ उसको, है ना? वो अंदर से अर्ज आता है सॉल्व करने का. वो प्रॉब्लम यही है, उस अर्ज को रोकना है तुमको, ठीक है? द पॉइंट इज I'll attempt only those questions. मैं इसको राउंड 1 स्ट्रेटेजी बोलता हूं. Initially attempt only those questions which can be solved in less than 40 seconds, maybe 30 also. मतलब ये तो मैंने हायर साइड ले लिया. राउंड 1 के अंदर आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो 40 सेकंड से कम में होने वाले हैं. So even if you have urge to solve it,
छोड़ दो, बाद में कर लेना, आपको करना है, मार्क करने का ऑप्शन होता है, राइट, यू कैन मार्क द क्वेश्चन और उसके बाद वापस जा सकते हो उसके ऊपर, राइट। तो उसके लिए ये ध्यान रखना कि सिलेक्शन जब आप करो क्वेश्चन का, सो अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड इन लेस देन 40 सेकंड्स। रफली एग्जांपल दे रहा हूँ, 35 हो सकता है, 40 हो सकता है, 20 भी हो सकता है, राइट। द पॉइंट इज कि आप जब इस तरह से करोगे, आपका क्वेश्चन 1 आया, आपने अटेम्प्ट कर लिया विद इन 30 सेकेंड लेट से, क्वेश्चन 2 आया, वो भी आपने कर लिया, क्वेश्चन 3 आया, वो आपने मार्क करके छोड़ दिया, क्वेश्चन 4 बिल्कुल ही ऊपर से निकल गया, क्या बोल रहा है, छोड़ दिया, राइट। इफ यू अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी, आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो विच कैन बी सॉल्व्ड इन लेस देन 40 सेकेंड्स। सो इससे क्या क्या चीजें होंगी, इससे 2 चीजें होंगी। एक तो आपका अटेम्प्ट अपने आप बढ़ जाएगा, बिकॉज यू आर डूइंग ओनली दोज क्वेश्चंस जो आप कर सकते हो, आपको आते हैं और जल्दी हो रहे हैं, स्पीड बढ़ गई अपने आप, राइट। ऑल्सो यू कैन चेक मैक्सिमम क्वेश्चंस। क्या होता है एमएससीटी में स्पेसिफिकली, आखिरी के 20, 25, 30 क्वेश्चन देखे ही नहीं, बिल्कुल फ्लूक मारा, माइट बी पॉसिबल कि वहां पे बहुत इजी क्वेश्चंस रहे हों, लेकिन वो आप देख ही नहीं पाए, यू हैव नॉट सीन इट। क्यों? क्योंकि आपने शुरू में टाइम वेस्ट किया ऐसे क्वेश्चन में जो 1 मिनट ले रहे थे, क्योंकि आपके अंदर से अर्ज आ रही थी कि मैं तो इंटेलिजेंट हूं, मैं तो करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को। ये प्रॉब्लम है, अपने आप को प्रूफ नहीं करना। सारे क्वेश्चन सेम मार्क्स के हैं ना, अगर उसके भाई 5 मार्क्स मिल रहे हैं मेरे को, तो ठीक है, कर लेना भैया, है ना। सेट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, एलआर के अंदर सेट्स क्वेश्चन आते हैं, अरेंजमेंट क्वेश्चन आता है। अब अगर उसमें दिख रहा है मेरे को 5 क्वेश्चन हैं और इजी सेट है, तो मैं डेफिनेटली एंड में करूंगा उसको। बट इफ इट इज वेरी डिफिकल्ट, सर्कुलर अरेंजमेंट है उसमें, इनवर्ड फेस, आउटवर्ड फेस, जनरली एमएससीटी नहीं देता है, बट सपोज आ गया, तो क्यों करना है उस क्वेश्चन को तुम्हें, है ना। करना है तो मैं लास्ट में करूंगा, दैट्स द पॉइंट, आई गेट द पॉइंट। तो इस तरह से काम करना है हमको, राइट। तो ये ब्रेक डाउन करोगे तो सारे क्वेश्चन देख पाओगे, इजी क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर पाओगे, तो फ्लूक कम से कम लगेंगे तो उसमें लगेंगे जो एक्चुअली डिफिकल्ट थे, राइट। तो उसमें सही हुआ नहीं हुआ वो तुम्हारा लक है, गॉट इट। इस पे ध्यान रखना। सिलेक्शन इंप्रूव कर लोगे तो एक्यूरेसी, स्पीड अपने आप इवेंचुअली ठीक हो जाती है। तुमको इस पे फोकस ही नहीं करना, एक्चुअली तुमको फोकस करना है सिलेक्शन के ऊपर। ये बढ़ गया, स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। एंड द पॉइंट इज, इट इज नॉट इजी टू अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी। जितना इजीली मैं बोल पा रहा हूं ना कि कर लेना, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वो अर्ज खत्म करना, कई बार सिलेक्शन गलत भी हो जाता है, राइट। माइट बी पॉसिबल यू हैव सिलेक्टेड द क्वेश्चन कि ये तो आसान लग रहा है, कर लेते हैं, बट इवेंचुअली वो 1 मिनट का टाइम ले गया। अब अगर 1 मिनट का टाइम अगर क्वेश्चन ले गया, छोड़ दो भाई उसको, क्योंकि वो टाइम खाएगा उस केस में जो आपको आगे अटेम्प्ट करना था, और यू विल इवेंचुअली मिस दोज क्वेश्चंस जो इजी रहे हो। अब अच्छी बात ये है, अगर आप अटल मॉक्स की बात करते हो, है ना, जो इस बार उन्होंने अरेंज किया। प्रॉब्लम क्या थी कि अभी तक एमएससीटी में कई बार वो ग्रुप क्वेश्चन भी, मतलब सारे सेक्शन अलग अलग आते थे, मिक्स भी आए हुए हैं, है ना, पूरा पेपर ही मिक्स है, कभी इंग्लिश आ गया, कभी एब्स्ट्रैक्ट आ गया, कभी कुछ आ गया, दैट हैपेंस मैनी ईयर, राइट। बट अभी लुकिंग एट द अटल मॉक्स, इट इज क्लियर कि ये लोग देंगे तो सेक्शन वाइज ही, और यू कैन सेलेक्ट सेक्शन, टॉगल बिटवीन द सेक्शंस आल्सो। तो स्ट्रेटेजी का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना, कि हम राउंड कैसे लगाए जाए। तो हमारा जो मेन पॉइंट है, राइट, ये 4 कैटेगरी हमारा बात करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट तो आता है कि विच सेक्शन टू अटेम्प्ट टू फर्स्ट, वेदर शुड आई गो फॉर क्यूएडीआई, वेदर शुड आई गो फॉर एलआर, एब्स्ट्रैक्ट और वीएआरसी। देयर इज नो फिक्स रूल टू दिस, राइट। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो 4 फैक्टोरियल 24 वेज में आप अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर को। द पॉइंट इज हाउ टू चेक इट, हाउ टू वेरीफाई, और हाउ टू गेट एन आइडिया कि क्या हमारे लिए बेस्ट सूट करेगा, कि कौन सा पहले करें। उसी के लिए वो फ्लक्चुएशन की हम बात करते हैं। दैट इज वाई गिव मोर एंड मोर मार्क्स, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करने की कोशिश करना, कभी क्यूएडीआई फर्स्ट, कभी एलआर फर्स्ट, या फिर 4 तरह की बात कर सकते हैं यहाँ पर। 4 क्या मतलब, बेसिकली 2-3 तरह की बातें हैं। दैट अ सेक्शन which is very comfortable to you, a section which is okay to you, and a section which is not comfortable to you, and this can track down to topics also, कि ये टॉपिक मेरा बहुत डिफिकल्ट नहीं समझ में आता है, तो ये तो छोड़ने वाले क्वेश्चन हैं, राइट। बट वो तो जब आएंगे जब हम सेक्शंस की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू सेलेक्ट सेक्शन कौन सा करना है, दैट्स अप टू यू, आपके लिए कौन सा बेस्ट लगता है। आपको क्यूएडीआई अच्छा लगता है, पहले वो अटेम्प्ट कर लो। 2 पॉसिबिलिटीज के अंदर ये भी हैं कि
जो मेरा इजीएस्ट सेक्शन है पहले मैं वो कर लेता हूँ, फिर डिफिकल्ट वाला बीच में और मीडियम वाला लास्ट में, या ऐसा ही कुछ है ना। या हो सकता है मैं डिफिकल्ट पहले करूं। अब इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके लिए क्या सूट करेगा। मतलब मेरे लिए जो सूट कर रहा है इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके लिए सूट करे। तो फ्रेंड से स्ट्रेटेजी का आइडिया ले लेना, बट अप्लाई करना वही जो तुम्हें सूट करता हो, राइट। इसलिए वो एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप पेपर देते हो, मार्क्स आए नहीं आए, एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है कि वो तुमने जो पेपर किया तो कितना सही है कितना गलत है, राइट। उसकी बात भी करेंगे। ओके, सो अब सपोज आपने कोई सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर की पहले मैं QADI करने वाला हूँ, या उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट करूंगा, उसके बाद VARC, उसके बाद LR से, या हो सकता है फर्स्ट LR देन एब्स्ट्रैक्ट देन QADI देन VARC, अगेन डिपेंडिंग ऑन यू। तो 50 क्वेश्चंस मेरे पास QADI के हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, ट्राई टू ब्रेक डाउन इट विद इन गिवन टाइम। वो जो स्ट्रेटेजी हमने लगाई वो तो लगाओगे, बट एक स्पेसिफिक टाइम भी दो उसको। लेट्स से 50 क्वेश्चन अगर आप दे रहे हो तो मैं 30 मिनट स्टार्टिंग में रखता हूं उसके लिए। गॉट इट। 30 मिनट्स में, बिकॉज आई मीन क्वांट में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्वांट DI में, इसमें फोकस ऑन दिस थिंग कि DI एंड क्वांट, ठीक है, इसमें से कौन सा पहले किया जाए। सो जनरली DI जो है वो कैलकुलेशन ट्रिक्स पे काम करता है। सिंपल सा ग्राफ है, अगर आपको यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट कि सिंपल सा ग्राफ है, प्लस माइनस परसेंटेज निकालनी है, इजीली एवरेज निकालना है, अटेम्प्ट कर लो, है ना। QA के क्वेश्चन में अर्थमेटिक ज्यादातर आएगा, जिसमें TSD भी आ सकता है, टाइम एंड वर्क भी आ सकता है, विच माइट बी कंफ्यूजिंग, विच टेक्स टाइम ऑल्सो, राइट। तो उस पर ध्यान रखना कि वो मैं अभी करूं या थोड़ा रुक के करूं, मतलब सेकेंड राउंड में करूं। तो 30 मिनट्स में ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। यहां पर देखो, क्योंकि क्वांट है, LR की तरह बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो नहीं आते हैं जनरली, सीरीज आ जाएगा कई बार। सीरीज के अंदर अगर क्लिक हो रहा है तो इजीली यू कैन डू इन 20-30 सेकेंड्स, बट अदरवाइज जनरली टाइम लेगा यहाँ पर। सो ट्राई टू डू कि यहाँ पर मेरा 1 मिनट का एवरेज बना के चलो, ठीक है। ट्राई टू डू 30 to 35 क्वेश्चंस। ये मैं बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, है ना, कि मतलब अगर आपको JBMS जाना है तो, या मतलब टॉप के कॉलेजेस जाना है तो 30 मिनट्स हमने दे दिए QADI को, और उसमें हमने 30 to 35 क्वेश्चन कर लिया, सॉरी। ऑलराइट, अब लेट्स से LR की बारी आती है। ऑर्डर तो आप डिसाइड कर लोगे, मैं सिंपली बात कर रहा हूँ कि 75 क्वेश्चन अगर मैं दे रहा हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गिव इट 45 सेकेंड्स, एंड अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू रफ आइडिया। इट कैन बी 40, इट कैन बी 50 ऑल्सो। अगेन किसको डिसाइड करना है, यू नीड टू डिसाइड इट, what best works for you, right? What works for you best in a way. So इस 45 questions में we'll try to maximize my score by 50 to 55 questions, क्योंकि इसमें सिंगल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, है ना, वो करने वाले इजीली। तो काफी सारे क्वेश्चंस होंगे which can be solved in less than 1 minute, less than 40 seconds। तो ये तो मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ कि इतना तो आप कर सकते हो इजीली, बट अगेन वो सिलेक्शन ठीक होना चाहिए। विल टॉक अबाउट 1 by 1 ऑल्सो, सेक्शन में बात करते हैं, बट अभी मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ कि कितना मिनट हम दे सकते हैं और कितने अटेम्प्ट हम कर सकते हैं, जेन्युइन अटेम्प्ट्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में जाओ, एब्स्ट्रैक्ट में आप 15 मिनट दो केवल, कोई दिक्कत नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट के जनरली क्वेश्चन ईजी होते हैं, और इफ इट इज डिफिकल्ट तो छोड़ देना, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, लीव इट, बट करेंगे वही जो ईजी क्वेश्चन होंगे। और 15 मिनट्स में, मतलब अगर मैं मान रहा हूँ कि ठीक ठाक सा पेपर है तो आप इजीली 20 अटेम्प्ट कर सकते हो, चलो 15 से 20 मान लेता हूँ, कहीं फंस भी जाओ, कई बार होता है इसके अंदर, बट जनरली क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। किन किन पर सोचना है, किन किस पर ध्यान देना है, सीरीज पे जाना है, एनालॉजी पे जाना है, वो भी एक बात करते हैं अभी। देन VARC में लेट से मैं दे देता हूँ 35 मिनट्स, ठीक है। ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, वो कैब के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। RC को मैं साइड में कर दूं तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं विच कैन बी सॉल्व्ड इन 20 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स। तो मैं अगर 35 सेकेंड्स का टारगेट लगाता हूँ तो अगेन मतलब RC को इंक्लूड भी कर लूँ तो लेट से 35 क्वेश्चन का मैं टारगेट बनाता हूँ, ठीक है। हाउ मच टाइम हैव स्पेंट, 50, 70, 125। और अगर मैं मिनिमम वाला पार्ट भी ले लूँ, हाउ मेनी अटेम्प्ट आई हैव डन, 50 and 80, 130 क्वेश्चंस
मैंने अटेम्प्ट कर लिए, मैं वर्स्ट के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ. इट विल इंक्रीज डेफिनेटली अगर आप ढंग से फॉलो करोगे स्ट्रेटेजी को. ठीक है, मैं तो अभी काफ़ी ही बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि हो क्या रहा है. एंड स्टिल यू आर लेफ्ट विथ 25 मिनट्स. ट्राई टू गिव दिस टू दैट सेक्शन इन विच यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर. सपोज यहाँ पे आपका पूरा स्कोप खत्म हो गया था कि अब जितने क्वेश्चन बचे हैं वो या तो डिफिकल्ट हैं या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं. ठीक है, बट लेट्स से यहाँ पर 5-7 क्वेश्चन बचे हैं जो आपने मार्क किए हुए हैं. अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑल्सो, राइट. आपने मार्क किया होगा उसके अंदर. उन मार्क क्वेश्चन पे जाओ, है ना. यहाँ पर जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उस पर जाओ. इसमें अगर कुछ बचा है तो, बट आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा स्कोप होगा. एंड सेम गोस फॉर दिस. ठीक है, आरसी अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि आरसी आपको टाइम लेगा पढ़े हुए तब तक. तो इसमें करने वही हैं जो सिंगल क्वेश्चन है. ठीक है, सिंगल क्वेश्चन ही करेंगे लास्ट के 25 मिनट्स में. नाउ ये थोड़ा बहुत वेरिएशन, मैं एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ. इट कैन फ्लक्चुएट. आप शायद यहाँ पे 25 कर दो, शायद यहाँ पे 35 कर दो, डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग विद द टॉपिक और सब्जेक्ट, है ना. सेम गोज विद दिस. सो दिस इज रफ आइडिया हाउ यू कैन ब्रेक डाउन द थिंग्स. देखो, एक स्ट्रेटेजी ये भी काम करती थी या कुछ लोगों के लिए करती है कि 5 या 4 पार्ट्स में ब्रेक कर लो पूरे पेपर को. मतलब कि अगर मैं 5 पार्ट्स में ब्रेक करता हूं, 30 into 5 हो गया, राइट. और उसमें टारगेट लो क्वेश्चंस का 40 क्वेश्चंस. बट वो शायद बेस्ट तब काम करती जब पेपर जंबल अप है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कहां पे क्या आ रहा है. अभी इस वाले सिनेरियो में तो ये वाला पार्ट अगर करते भी हो आप, तो इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो, राइट. एग्जैक्ट अभी मैं पार्ट ही बना रहा हूं, देखो, है ना, जो यहाँ पे आप बात कर रहे हो. बट द ओनली डिफरेंस इज कि मैं पार्ट का फ्लक्चुएशन डिफरेंट रख रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन, मतलब पर क्वेश्चन के बेसिस पे कितना टाइम में दे रहा हूँ, उसके बेसिस पे जो टॉपिक है, जो सेक्शन है, उसके बेसिस पे यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट टाइम. ये बात ध्यान रखना कि आपके पास लास्ट में 25 to 30 मिनट्स बचने चाहिए, जिसको आप वापस वहां जाके जिनको मार्क करके आपने छोड़ा हुआ था क्वेश्चंस को, उन पे जाके यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर. मैं 130 मार्क्स ऑलरेडी कर चुका हूं, और आखिरी के 5 मिनट रख देना फ्लूक मारने के लिए, वो भी करने हैं. इट टेक्स टाइम, राइट. एक आसान काम नहीं है वो भी, ये नहीं एकदम से हो जाएगा. तो 5 मिनट्स में तो लास्ट में फ्लूक ही मारेंगे. बट वो ये कि 20 to 25 मिनट्स अगर आपके पास रहते हैं तो वी कैन मैक्सिमाइज माई स्कोर बाई गोइंग बैक टू द सेक्शंस. ठीक है, सो दैट्स अ रफ आइडिया. ट्राई टू अटेम्प्ट इट. इसको अप्लाई करने की कोशिश करो, फ्लक्चुएट करने की कोशिश करो. रिजिड बहुत मत रहना, है ना. मैंने बोल दिया 30 मिनट्स तो 30 मिनट्स ही करेंगे, ऐसा नहीं होता है. अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना, आपके लिए क्या बेस्ट सूट कर रहा है, उस पर ध्यान दो. ठीक है, तो किसी के लिए 30 हो सकता है, किसी के लिए 35 भी हो सकता है. मान लो आपके पास लेट से पेपर ही काफी आसान आ गया, तो आप करते गए और 35 मिनट्स में आपने ऑलमोस्ट 45 अटेम्प्ट कर लिया. यहाँ पे माइट बी पॉसिबल, राइट. तो कर लो, क्या इशू है. मेरा इवेंचुअली टारगेट क्या है कि मेरे को स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, तो कहीं से भी हो, है ना. ठीक है, दैट्स योर आइडिया आई थिंक. तो सिलेक्शन पे ध्यान देंगे, इस स्ट्रेटेजी पे ध्यान देंगे. आखिरी में कुछ टाइम रखेंगे हमारे पास जो हम वापस स्ट्रेटेजी पे लगा सकें. ठीक है, मेरे हिसाब से ये बेस्ट सूट करती है और काफ़ी ही लोगों को फायदा भी होता है इसके अंदर. बट अगेन यू आर फ्री टू स्ट्रेटेजाइज योर ओन स्ट्रेटेजी. मतलब यू नीड टू यू आर फ्री टू मेक योर ओन स्ट्रेटेजी, राइट. उतना फ्रीडम होना चाहिए. ये नहीं कि बस बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई. अपना दिमाग लगाओ, ठीक है, वो काम करेगा ज्यादा. गॉट इट, दैट्स द पॉइंट. अब आते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज पर. QA प्लस DI में DI हमने बात कर ली, 2 से 3 सेट्स आ सकते हैं बेस्ड ऑन परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज. ठीक है, और परसेंटेज ही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक करता है, इसके अंदर कैलकुलेशंस कई बार प्रॉब्लम करेंगी. So whatever we have done in the percentage classes or reciprocal के percentage, right? 1/7 is 14.28%, 1/11 is 9.09%, and multiples of those also, right? 3/11 आपको पता होना चाहिए. वो सब याद कर लो, ये बहुत काम में आएगा. Eliminate the options, ये भी चीज स्ट्रेटेजी काम करती है. आपको अगर ये निकालना है कि 45 out of 128 कितना परसेंट है, I'll try to eliminate the options. I'll not try to find the exact answer कौन सा आ रहा है.
मैं ये कर लूंगा कि हाँ ये आंसर नहीं सकता, ये नहीं सकता, ये नहीं सकता। कैसे? मतलब इसमें अगर वर्कआउट करूँ सपोज के अंदर, अभी तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं इस पर रफली वर्कआउट करूंगा, राइट। सो सबसे पहले आप ये देख लो कि भाई 12 से कितने जाते, 30 से ऊपर है, 40 से नीचे है, तो ये कुछ 30% से तो ऊपर है, दैट्स फॉर श्योर, राइट। अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकता हूँ। देखो अगर ऑप्शन काफी दूर है, सो आई कैन डू इज व्हाट आई कैन डू इज मैं इसको 125 ले लेता हूँ, अगर, बट उसमें वही बात है कि ऑप्शन शुड बी फार अपार्ट। अदरवाइज वर्क ऑन दिस कि भाई इसका 25% निकाल दिया हमने, ब्रेक डाउन इन सच परसेंटेजेस विच कैन बी इजिली कैलकुलेटेड, राइट। 25% इज 1/4, 1/4 करेंगे तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 2, 32 आ गया। अभी और आगे जाना है मुझे, 10% और ले लेता हूँ। 10% इज 12.8, 13 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। सो 35% अगर आप देखो तो आपने निकाल दिया 45 आ गया। अरे वहीं पहुंच गया ऑलमोस्ट, तो ऐसे ही ले लिया था। सो योर आंसर शुड बी क्लोजर टू 35%। अब बस ये देख लेना कि आंसर इज मोर देन दिस और लेस देन दिस, अगर वहां फंस रहे हो तो उसमें ये देखने लगा कि आपने यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा ले लिया था, क्योंकि ये 12.8 बनेगा, है ना। सो 12.8 लेता तो ये आंसर छोटा होता, तो आंसर शुड बी मोर देन 35%। तो अगर ऐसा भी ऑप्शन आ गया बाई चांस कि भाई 34.5 भी है और 35.2 भी है, तो आई विल मार्क 35.2। तो ये तो एक मैंने एग्जांपल दिया कि कैसे स्ट्रेटजी काम करती है। लुक फॉर सच काइंड ऑफ कैलकुलेशन, इसकी प्रैक्टिस कर लो, डीआई में बहुत ईजी आएगा, इससे ही टाइम बचाओगे तुम। सो कैलकुलेशन ट्रिक्स करनी ही करनी है ना, पहले से प्रैक्टिस करके रहो, ये काम आसान हो जाएगा। बाकी देखो एवरेज रेशियो में तो फर्क पड़ता नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम ही आएगा। रेशियो में एक पॉइंट आ सकता है, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, राइट, कि कई बार आपको दे देगा कि 3-4 ईयर्स हैं, इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज द हाईएस्ट, तो वहां पर जरूरी नहीं कि मैं एक्चुअल परसेंटेज निकाल के चेक करूँ, आई कैन कंपेयर द रेशियोज ऑल्सो, कि यहाँ पे इंक्रीज दिस अपॉन दिस है, यहाँ पे इंक्रीज दिस अपॉन दिस है। वो सब कॉन्सेप्ट का पार्ट है। मैं जब जस्ट गिव एग्जाम्पल कि व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू फोकस ऑन, ओके, व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, ओके। सो दैट्स द पॉइंट इन डीआई। तो ये यार मान के चलना कि अगर 3 सेट सारे तो 2 तो आराम से कर पाओगे तुम, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अर्थमेटिक, परसेंटेज के क्वेश्चंस, पीएलडी के क्वेश्चंस, रेशियो के क्वेश्चंस, एवरेज के क्वेश्चंस, राइट, टीएसडी, टाइम एंड वर्क, ये सब आएगा। टाइम एंड वर्क जनरली लोगों को प्रॉब्लम करता है। अगर बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई टू अटेम्प्ट इट। थोड़ा सा 4-5 लाइन का क्वेश्चन है, सेकंड राउंड क्लियर कर देना भाई। सेम फॉर टीएसडी। मतलब सी नंबर सिस्टम आ गया है ना, नंबर सिस्टम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर सिस्टम के जनरली क्वेश्चन सिंगल लाइन के होते हैं, जल्दी समझ जाओगे, जल्दी अटेम्प्ट कर लोगे, टाइम भी सेव हो गया, एक्यूरेसी भी बढ़ गई, राइट। तो अर्थमेटिक थोड़ा लैंग्वेज लेंदी होती है, तो इसलिए थोड़ा हम उसमें अवॉइड करेंगे कि हाँ वही क्वेश्चंस करें स्टार्टिंग में, जो इजी हो, सिंगल और डबल लाइन के टाइप के हो, समझ में आ रहा है, कर लेंगे। आसान क्वेश्चन है टीएसडी में, कोई दिक्कत नहीं, कर लो यार। एवरेज स्पीड के ऊपर बेस जा रहा है, कर लिया वहीं पे। बट वो कहानी बोल रहा है कि यहाँ से वहाँ गया, फिर वहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, बेटर टू डू इट इन सेकंड राउंड, मार्क करके छोड़ देना। सेम गोज विद टाइम एंड वर्क, है ना, वहाँ पे सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है वापस से। नंबर सिस्टम, ये मतलब इजी क्वेश्चन आएंगे, अगर डिफिकल्ट आ गए तो छोड़ देना। बट वही वाला पॉइंट है कि डिफिकल्ट आते हैं, देखो डिफिकल्ट आएंगे। पीएनसी के क्वेश्चन आते हैं, बट बहुत इजी भी आ सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट भी आ सकते हैं। यू नीड टू अगेन स्ट्रेटेजाइज, सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन करने लायक है कि नहीं है, छोड़ना है कि करना है, राइट। वो ध्यान रखना कि बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंगल पूछ रहा है कि यहाँ एनसीआर लगाना है, सिंपल कर दिया। 11 पॉइंट्स हैं, 5 कोलिनियर हैं, कितने ट्राइंगल्स बने, कितने लाइंस बनेगी, जस्ट एग्जाम्पल करने वाला क्वेश्चन है, वही कर लिया। बट उसमें कुछ बेस थ्योरम लगा दी तो भैया तो क्यों ही करूंगा। और ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बेस थ्योरम वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, आई हैव सीन इट, राइट, पर्सनली मेरे स्लॉट में आए थे, तो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हर तरह का कुछ ना होता है, राइट। चलो, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे क्यूएडीआई के अंदर। एलआर के अंदर सिंगल क्वेश्चंस डेफिनेटली अटेम्प्ट करने हैं मेरे को, जिसके अंदर डायरेक्शंस जनरली इजी होता है, और ये ग्रुप में भी आ सकता है, ग्रुप क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्शन के अंदर, अटेम्प्ट कर लेना। ये करने वाले डेफिनेटली होते हैं, मतलब इजीएस्ट ऑफ लॉट आई शुड से। बेसिक डायरेक्शन से यहाँ गए वहाँ गए, आराम से क्वेश्चन हो जाता है। ब्लड रिलेशंस जनरली इजी होगा, समटाइम्स कुड बी ट्रिकी। इजी है ट्राई करेंगे, ट्रिकी है मार्क करके छोड़ देंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। सिंगल क्वेश्चन भी आते हैं, राइट, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ पेन, सेट दिस जनरली हो जाते हैं वाले में, ठीक है। ट्रिक्स हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस की हुई है, आई थिंक, तो उसमें वहाँ नहीं जा रहा हूँ, राइट। कोडिंग डिकोडिंग हो गया,
इनपुट आउटपुट हो गया, ये सब जनरली इजी होंगे, बट वही है 1% 5% चांस होता है कि बहुत ही खतरनाक दे दिया। सीरीज आ सकता है, आ सकता है, आ ही सकता है, आता ही है ना। सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गई, ये सब यहाँ पे भी आते हैं। ऑड वन आउट आता है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले। ये वाले देखो ऐसे हैं, अगर सीरीज बहुत इजी है, दिख रही है कि हाँ प्राइम नंबर्स हैं, डिफरेंस का डिफरेंस है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है, डेफिनेटली कर लो। थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है ना, कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है इसके अंदर, मार्क करके सेकंड राउंड, ठीक। सेम विद ऑड वन आउट, ये भी मतलब इसमें क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ऑड वन आउट के अंदर, कई बार ना मल्टीपल लॉजिक लग जाते हैं यार, दोनों ऑप्शन में होते हैं, राइट। वेरी इजी एग्जाम्पल के भाई प्राइम नंबर देख रहे हैं, या फिर मल्टीपल ऑफ समथिंग देख रहे हैं, या फिर ऑड नंबर देख रहे हैं, तो उसमें कई बार होता है कि इसके हिसाब से ये आंसर, ये भी ऑप्शन में, इसके हिसाब से दिस कुड बी द आंसर, दैट इज ऑल्सो इन द ऑप्शन, दैट्स अ प्रॉब्लम नाउ। अब जनरली हम वहां पर देखते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग लॉजिक, बट पॉइंट वही है कि एग्जामिनर ने क्या सोच के बनाया है वो आपको नहीं पता। जनरली व्हाट हैपन्स, क्योंकि हम देखो हम भी क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, सो वी थिंक ऑन ऑफ एन आइडिया, दिस इज द लॉजिक, इस पे लेट्स मेक अ क्वेश्चन। सो हमने एक क्वेश्चन बना दिया और हमने रैंडमली कुछ ऑप्शन दे दिए, बट वाइल क्रिएटिंग वी आर नॉट अवेयर कि एक और लॉजिक चल रहा था इसके अंदर, क्योंकि वो तो हमने सोचा नहीं, और उससे जो ऑप्शन बन रहा था अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो अच्छी बात है, बट अगर वो भी गलती से चला गया तो प्रॉब्लम है भाई। तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते, मतलब वो तो लक की बात हो गई, उसका कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर मतलब इतना टाइम मेरे पास नहीं है MSCT में कि मैं 2 लॉजिक सोचने की कोशिश करूँ। आपको दिख रहा है जो भी आपको बेस्ट लग रहा है वही मार्क कर देना, आगे चलना, टेंशन मत लेना इसके पीछे, है ना, एक केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। गॉट इट। इन सब पे ध्यान रखेंगे। फिर सेट्स हो जाएंगे, सेट्स में जनरली अरेंजमेंट होता है, लीनियर अरेंजमेंट आ जाए, टेबुलर अरेंजमेंट आ जाए, सर्कुलर अरेंजमेंट आ जाए, है ना, ग्रिड बेस्ड मिसिंग आउट भी होते हैं। लुक एट द नंबर ऑफ डायरेक्शंस गिवन, स्टेटमेंट्स जो गिवन होती हैं, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट है, 10-12 स्टेटमेंट है, छोड़ दो, है ना, 4-5 स्टेटमेंट है, 6 स्टेटमेंट है, कर लिया। लीनियर अरेंजमेंट जनरली इजी होता है, कर लेते हैं। लेफ्ट राइट का ध्यान रखना, फेसिंग का ध्यान रखना, वो सब चीजें हैं, है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो बट वही है कि यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने, क्योंकि सेट पढ़ने के बाद ही पता लगेगा कि अटेम्प्ट करने वाला है कि नहीं करने वाला है, तो वो चीज प्रैक्टिस से आएगी। मैं एग्जाम्पल लेकर तो क्या समझाऊं तुम लोगों को, ठीक है। सो दैट्स एन LR। अब LR के अंदर ये तो हो गया आपका AR वाला पार्ट। अब आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग वाले पार्ट पे, लॉजिकल रीजनिंग जिसको आप बोलते हो, एक्चुअली पूरे नाम भी लॉजिकल रीजनिंग है, बट इसमें कौन कौन से स्कोरिंग एरियाज होते हैं। सिलॉजिज्म बहुत इजी होगा, डेफिनेटली करने वाला होता है ना। सिलॉजिज्म आ जाएगा, ऑड वन आउट आ जाते हैं, जनरली इजी होते हैं, ठीक है, वो कैप बेस पे आ जाता है कई बार इसके अंदर। फिर कोर्स ऑफ एक्शन, एजम्पशन, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आता है, पकड़ में आ रहा है। टाइम टेकिंग नहीं होते ये क्वेश्चन, अच्छी बात ये है। सिलॉजिज्म टाइम टेकिंग नहीं होगा, कोर्स ऑफ एक्शन टाइम टेकिंग नहीं होगा, एजम्पशन टाइम टेकिंग नहीं होगा, एक सिंगल स्टेटमेंट होगा, उस पर 2 एजम्पशन रखे हैं, एकदम से क्लिक हो गया कि हाँ यही आंसर है, ये नहीं है, डन, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। जो टाइम लेगा वो सेट लेगा, चाहे वो डायरेक्शन बेस्ड हो, ब्लड के ऊपर हो, है ना, कोडिंग पे भी आ जाता है, इनपुट आउटपुट भी आ जाता है। इनपुट आउटपुट में अगेन इजी सा दिख रहा है, अटेम्प्ट करेंगे, अजीब ही कुछ चल रहा है तो भैया सेकंड राउंड, वही चीज प्रैक्टिस से आना पड़ेगा। गॉट इट जी। चलो इन पे ध्यान रखना। और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के अंदर देखो सीरीज तो करनी है, लेकिन इजी दिख रही है तो करेंगे, बहुत ज्यादा फिगर्स हैं तो सेकंड राउंड के लिए छोड़ देना। सिंपल कम फिगर्स हो, आराम से चल रहा है, पता लग रहा है कहाँ राइट लेफ्ट कितना शिफ्टिंग हो रही है, रोटेशन कितना डिग्री से हो रहा है, अटेम्प्ट कर लो। एनालॉजी कर लो, इसके अंदर एनालॉजी का जनरली आसान होता है, बहुत इजीली हो जाता है। ऑड वन आउट कर लो, जनरली इजी होता है। सो फोकस ऑन ऑड वन आउट, फोकस ऑन एनालॉजी, ये क्वेश्चन जनरली इजी आएंगे। सीरीज वाले कुछ इजी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी आ जाते हैं कई बार, तो सीरीज वाले पे सेकंड पॉइंट आ जाता है। फिर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ये सब वाले क्वेश्चन, उसमें वही है, काउंट करना पड़ता है। इजी सी फिगर है, काउंट कर लिया, बट प्रॉब्लम ये है कि वो काफी क्लोज ऑप्शन होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, विच विल टेक टाइम। तो अगर बहुत इजी लग रहा है ट्राई कर लो, नहीं तो मार्क करके सेकंड राउंड के लिए, तो हमारे पास हमेशा ही है। बट या स्कोरिंग सेक्शन है ये,
तो डेफिनेटली करने वाला बनता है। तो मतलब वर्स्ट के सिनेरियो में आप 15 क्वेश्चन तो आराम से कर लेते हो, कोई डाउट ही नहीं। ठीक है। वीआरसी के अंदर वोकैब एंड ग्रामर, मतलब ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स भर भर के आएंगे। ग्रामर, एरर इन द क्वेश्चन, और ये स्कोरिंग एरियाज होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होते। वो कैब का अगर तुमको पता है सिनोनिम्स है क्या है, पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी अच्छी बात है, मतलब टाइम वाइज बात कर रहा हूँ। इफेक्टिवली वो 10-15 सेकंड ही लगेंगे ना तुमको, चाहे तुम अटेम्प्ट करो या तुक्का मारो, राइट। ग्रामर में वही है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 20-30 सेकंड लग जाएंगे, 40 सेकंड लग जाएंगे कई बार समझने की कहाँ पे एरर आ रही है। बट वो कैब के अंदर टाइम सेव होता है हमारा, आरसी टेक टाइम, तो ध्यान रखना उसके अंदर। तो करना सभी कुछ है जो आपके हाथ में होता है अभी एज ऑफ नाउ। वो कैब आपकी अच्छी है, वेरी गुड, बट उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है ना। लुक फॉर प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ MSCT मिलते हैं, वहां से वो कैब कर लो, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। ठीक है। ग्रामर पे फोकस करो, ग्रामर पे यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर, है ना। सिंपल बेसिक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं कि बहुत ग्रामर पंडित होना पड़ेगा मुझके लिए, तो ऐसी एरर्स नहीं देता आपको। ठीक है। बेसिक एरर्स होंगी, तुमको बेसिक कॉमन सेंस होगा, इजीली कर पाओगे। आरसीस अगेन रीडिंग का खेल है सारा, है ना, वो तो प्रैक्टिस से ही आता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। बट या ये थोड़ा टाइम लेता है, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आरसीस लास्ट में नहीं करना है। ठीक है। सिंगल क्वेश्चंस करेंगे, तो सेट वाले भी लास्ट में नहीं करने हैं। अगर आप एलआर कर रहे हो लास्ट में तो सेट वाले क्वेश्चंस मत करना। गॉट इट। चलिए, डू नॉट अटेम्प्ट, कौन से क्वेश्चन करने ही नहीं है। मैं लास्ट ईयर का एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, मैंने एक वीडियो में करवाया भी है ना। P said to Q, you are as old as R was when I was twice as old as S and it will be blah 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 blah। मतलब देख के लग रहा है कौन करेगा इस क्वेश्चन को। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। ये देख के छोड़ने वाले हैं, तो कुछ भी तुक्का मार देना, चल देना आगे, है ना। गैस वर्क है, नथिंग एल्स। ओके। अच्छा, इससे एक बात और ध्यान आई, व्हाट शुड यू लुक फॉरवर्ड, जो हमने बात पहले भी किया एक शॉर्ट्स के अंदर। ग्रुप क्वेश्चन जो हैं वो स्कैटर्ड हो सकते हैं विद इन द सेक्शन, एंड इट जनरली हैपन्स विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जैसे ये भी स्कैटर्ड था, इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ था और कुछ 10 क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ था। सेम गोज कैन गो विद डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट। ठीक है, वो ध्यान रखना। तो वो फॉर सच सिनेरियोस, जब भी इस क्वेश्चन को करो, ऐसे क्वेश्चन को करो जहां पे आपने किया हुआ है इस क्वेश्चन को, रफ आपको मिलेगा रफ पेपर, राइट। एक बार सर्किल या स्क्वायर, मतलब कुछ नोटेशन लगा देना उसके ऊपर, यहाँ ये शायद बाद में यूज हो जाए। ओके, तो ध्यान रहेगी मुझे कहाँ पे देखना है आंसर, क्योंकि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया, मतलब फैमिली ट्री बेस्ड। अब तुमने मेहनत करके फैमिली ट्री बनाया, राइट, तो वो तो खैर वैसे भी दिख जाएगा, बट वो पेपर्स ध्यान रखना कि कहाँ पे सलीके से लगाना थोड़ा सा। ठीक है। और कई बार ऐसा होगा एग्जाम के अंदर कि वो पेपर क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं होता है, तो फट भी जाते हैं, तो ध्यान रखना उस चीज़ का बाद में काम आने के लिए। ऑडिट, तो स्कैटर्ड होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। तो डायरेक्शंस हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, ये हो गया, ये स्कैटर्ड हो सकते हैं। ग्रुप क्वेश्चन जो अरेंजमेंट वाले हैं वो जनरली एक साथ ही आएंगे, उसमें ज़्यादा फाइटिंग नहीं है, बट उसके साथ भी वो काम वो कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। ठीक है। लुक फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ऑलराइट, एरर्स का ध्यान रखना। एरर्स होती हैं, लास्ट ईयर भी थी, उसके पहले भी होती हैं, बिकॉज सी इट हैपन्स, मतलब मैं उनको गलत नहीं मान सकता। एरर्स हो जाती हैं क्योंकि आप इतने सारे स्लॉट बना रहे हो, क्वेश्चंस बना रहे हो, कई बार एक लॉजिक से बनाया, फिर उसके अंदर कुछ एरर रह गई, नहीं हुआ, फिर प्रिंटिंग में एरर हो जाती है, मल्टीपल थिंग्स आते हैं, कई बार टेक्निकल एरर्स हो जाती है, बट एरर्स होती हैं, है ना। क्वेश्चन चेंज किया बट इफेक्टिवली कहीं चेंज करना भूल गए, लाइक दिस वाज द लास्ट ईयर क्वेश्चन जिसमें एरर थी। ओके, अब जैसे ये दोनों स्टेप्स सेम है, जो नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। अगर सेम स्टेप बनाऊंगा तो फिर मैं स्टेप दूंगा ही नहीं ना उसको। तो यहाँ पे एक गलती थी, ये दोनों मतलब एक्चुअली बैक 32 होना चाहिए था और वो 32 बैक लिखा हुआ था। इफ यू अब ये तुम सॉल्व करने बैठ गए, इफ यू कैन क्रैक इट कि एरर क्या है, देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, अदरवाइज लीव इट। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है कि क्या मैं वो गलती पकड़ सकता हूँ जो की हुई है। पकड़ पा रहे हो इसीलिए तो कर लेना, नहीं तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था एक्चुअली, क्योंकि
थर्ड स्टेप में ही एरर है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे एक्चुअली किया हुआ क्या है यहाँ पर। पकड़ पा रहे हो, वेल एंड गुड। नहीं तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऑन एंड ऑल छोड़ने वाला था बिकॉज ऑफ दिस एरर, अदरवाइज क्वेश्चन ईजी है। पकड़ पा लिया तो वैसे फाइट नहीं है इसके अंदर, बिकॉज सिंपल असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर है, नथिंग एल्स। और ये भी ग्रुप क्वेश्चन था लेकिन स्कैटर्ड था, ठीक है। ओके, ये एक एरर होगी। एक ये एरर थी मैंने जो हमने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिया था, दिस वाज एन एरर। यहाँ 240 है, यहाँ पर 120 है, ठीक है। तो वो चेंज करना भूल गए डेटा, या तो 240 का 120 करना भूल गए, 120 का 240 करना भूल गए, और दोनों ही ऑप्शन क्लोज थे। 120 से सॉल्व करोगे तो आंसर 41 आएगा एंड 42 इज इन द ऑप्शन। तो डाउट हो जाएगा कि सही किया नहीं किया। एक तो क्वेश्चन वैसे डिफिकल्ट है, टाइम टेकिंग है, ऊपर से एरर इसके अंदर। ये तो छोड़ने वाले क्वेश्चन थे। 240 से आंसर 82 आएगा, वो ऑप्शन में है। सेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन, उसके ऊपर से एरर। माइंड खुला रखना है, दैट्स अ पॉइंट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। एंड देन द मोस्ट, मतलब अभी के लिए तो हमने एग्जाम की बात करी, यही काम आप मॉक्स के अंदर लगाओगे। एनालाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लुक फॉर एरर्स, लुक फॉर मिस्टेक्स, लुक फॉर रॉन्ग सिलेक्शंस। आप जनरली लगता है कि एनालाइज करना कि जो क्वेश्चन नहीं आया उसके लॉजिक पढ़ लो और उसको दोबारा अटेम्प्ट कर लो, दैट्स ऑब्वियसली वन ऑफ द पार्ट। बट बड़ा पार्ट ये है वेदर योर सिलेक्शन वॉज करेक्ट और नॉट। आपने जो सेलेक्ट किया क्वेश्चन को, या कितनी जल्दी लीव किया, नहीं किया, वो चीजें ध्यान रखो, है ना। टेक अ नोट ऑफ दैट। एक बनाओ बुक ऑफ एरर्स। कोई भी गलती कर रहे हो ना, सिली मिस्टेक, लिख लो उसके अंदर, आज मैंने ये गलती की, प्लस को माइनस पढ़ लिया, 25 का स्क्वायर 225 कर दिया, वट एवर इट इज। लिख लोगे तो नेक्स्ट टाइम सेम प्रॉब्लम, ये सेम गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ये तो मान सकते हो, राइट। क्योंकि लिख के हमेशा बात माइंड में बैठ जाती है, ठीक है। बुक ऑफ एरर्स बना लेना अगर बहुत सिली मिस्टेक करते हो तो, अदरवाइज भी, ठीक है। एटलीस्ट मतलब अभी मिस्टेक्स करने में इशू नहीं है, बट मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी स्कोर कम आ रहा है, इवेंचुअली आप इंक्रीज करोगे उसको। अभी आप 100 स्कोर कर रहे हो, 2-4 मॉक दो, स्ट्रेटेजी लगाओ, एनालाइज करो ढंग से, इट विल ग्रेजुअली इंक्रीज। एकदम से बूम नहीं होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड पेपर आता है, बस वही है, सिलेक्शन ठीक कर लोगे तो मोर और लेस कोई फाइट नहीं आएगी, राइट। एंड वही पॉइंट है कि जो आप एनालिसिस करते हुए क्वेश्चन का सिलेक्शन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना, और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखा कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करूं या मार्क करने के लिए छोड़ दूं। गॉट इट। चलिए, दैट्स द मेजर आइडिया। आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। कुछ और डाउट होगा तो यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड विल बी हैप्पी टू आंसर। दैट्स द मेन स्ट्रेटेजी। मैं यहाँ पे वापस आ रहा हूँ, ठीक है। इसको फोकस करना, फ्लक्चुएशन रहेगा डेफिनेटली। ट्राई टू अटेम्प्ट इट, ट्राई टू अप्लाई इट इन डिफरेंट मॉक्स। फाइनली आपका एक फिक्स स्ट्रेटेजी बन जाना चाहिए, क्या मेरे लिए बेस्ट सूट करता है। और एमएससी जैसे एग्जाम में फ्लक्चुएशन ज्यादा होता नहीं है लेवल डिफिकल्टी का, सो वट एवर बेस्ट वर्क्स फॉर यू वो इवेंचुअली काम में भी आ जाएगा। बट गिव मॉक्स, ठीक है। हमने 20 मॉक्स दिए हुए, काफी लोगों ने बहुत कम मॉक्स दिए उसके अंदर अभी, तो उसको मैक्सिमाइज करो। आप मेरे ख्याल से वो सोच रहे होंगे कि फिर लास्ट में देंगे, स्ट्रेटेजी नहीं बना पाओगे, दैट्स द प्रॉब्लम। तो स्ट्रेटेजी बनानी है तो सारे मॉक दो, एरर्स को आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो क्या आ रही है, एंड उसको रेक्टिफाई करो। गॉट इट। चलो, इतना ही आज के लिए। सी यू अगेन, बाय बाय।